Hello, friends. Welcome to this agriculture and allied sectors episode. A special Bihar topic है, and this is the lecture 3. So, we have already discussed on this topic agriculture and allied sector. 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है. अगर आपने उसे नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन है, प्लीज उसे आप जरूर देख लीजिए. सो दिस इज द थर्ड लेक्चर. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर Bihar examination, any BPSC or any Bihar state level government examination, then you can expect some of the good questions. इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर से बिहार के क्वेश्चंस आते हैं. इसके इस स्कीम से रिलेटेड से क्वेश्चंस आएंगे जो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. So let's have some review what we have discussed in the last time. So लास्ट टाइम में पब्लिक एक्सपेंडिचर्स ऑफ द एग्रीकल्चर जो सेक्टर का वो है, लैंड रिसोर्सेज क्या है, ऑल दिस हैव बीन डिस्कस्ड ब्रीफली और अच्छे से एकदम डिस्क्राइब किया गया है 1-2 लेक्चर्स में. वो जरूर आप देख लें. ठीक है, प्रोडक्शन ट्रेंड्स एंड द क्रॉप्स यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है. तो आज इस टॉपिक लेक्चर में हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ये सब पे डेटाज और जो भी है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. बेसिकली बीपीएससी का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो एग्रीकल्चर पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा बेस फैक्ट इसमें डेटा हम लोगों ने इंक्लूड किया है. सो आई विल डिस्कस फर्दर ऑन. सो दैट इज रियली हेल्पफुल. सो चलिए शुरू करते हैं. So this is Bihar special lecture. If you are preparing for Bihar examination, government examination, state level examination for the Bihar BPSC or any Bihar posts, then this is the very important lecture for you. Okay. So now the first, this the today's topic is horticulture. यहाँ पे अभी discuss करने वाले हैं horticulture. So in a very simple way, what is horticulture? अगर कोई होता है तो सबसे पहले understand करना चाहिए, what is horticulture. Okay, तो horticulture actually होता क्या है? So horticulture we can define as it is one of the most emerging and one of the most important agriculture enterprises in Bihar, and the rearing or the cultivation of fruits, vegetables, flower species, plantations, crops, medicinal crops, aromatic plants, ये सब जो भी plant का cultivation होता है, तो वो these terms, this process of cultivation, this farming of these fruits, vegetables, plants is called horticulture. So it's a different branch. And तो वही भगवानी और हिंदी में भी हम इसमें इंक्लूडेड किया है. तो जो फूलों की, सब्जियों की, फूलों की खेती, फसलों की और वृक्षारोपण, फसलों, औषधि और सुगंधित जो वृक्ष होते हैं उससे रिलेटेड जिसका प्लांटेशन होते हैं, तो वो सब किसके कैटेगरी में आते हैं? वो सब कैटेगरी में आते हैं, हॉर्टिकल्चर की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. सो एंड दिस इज, इफ एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द इमर्जिंग सेक्टर अंडर द एग्रीकल्चर ऑफ बिहार. ओके, सो इन लास्ट फ्यू इयर्स दिस हैज बीन इमर्ज वेरी ट्रिमेंडसली, okay, in the Bihar, and it is absorbing one of the largest labor sector, labor intensive field. Horticulture is later and earning remunerative returns to the farmers. ठीक है, तो ये labor intensive भी बहुत अच्छा है because it absorbs high amount of labors in this areas, in this field, and earning also livelihood के लिए भी बहुत important sector है ये. And one of the important component जो horticulture का जो भी cultivation and production होता है, so this is an important component of food and nutritional security. So if you talk about the nutritional security, तो nutritional security के basis पे जब भी बात होती है, then horticulture in this sector is a very important point. Okay, because it provides or in terms of nutritional security, so this sector is going to a boom, right? Means एक आशीर्वाद की तरह है. And important components of foods are also derived from this sector also, and the state government is promoting horticulture sector very intensively and very actively. So this is also important point कि अब जब horticulture कुछ वर्षों से क्यों emerging हो रहा है बिहार के agriculture part में, because this sector is being supported by the government, state government as well. So that's why being supported and promoting it. So that is the why this horticulture become one of the very important sectors that need to be taken care, and very great chances that this related questions you may get in the
बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशंस ब्रो। सो रिसेंटली बीपीएससी मेंस इन फ्यू मंथ्स में होने वाला है, बीपीएससी 65th मेंस। ओके, सो फॉर दैट पर्सपेक्टिव दिस टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो नाउ अब कुछ हॉर्टिकल्चर में कुछ टर्म्स मींस व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फील्ड्स, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट खेती जो होते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्रूट्स। व्हेन वी सी द फ्रूट्स, द प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट्स, देन इन बिहार सो अराउंड बनाना। सो देखिए बनाना जो केला बोलते हैं उसका प्रोडक्शन का क्या है, मतलब 44.94। यू सी दिस इज दिस परसेंटेज, मच ऑफ परसेंटेज आर बीइंग कल्टीवेटेड इन बिहार। एंड नेक्स्ट में उसके बाद कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेज में कौन आता है, पाइनएप्पल। सो बोल सकते हैं कि बनाना और पाइनएप्पल का प्रोडक्शन अंडर हॉर्टिकल्चर, फ्रूट प्रोडक्शन में ये दोनों बहुत बेहतरीन है, बहुत हाई प्रायोरिटी पे है, ठीक है। सो उसके बाद पपाया, वाटरमेलन, गुआवा, gooseberry, mangoes and other lychees and musk lemon, all these things are also included in it, but the higher percentage goes to banana and pineapple. So ये आपको ध्यान रखना है, जो केला और पाइनएप्पल जो होता है ना वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होते हैं। सो दिस इज ऑथेंटिक डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर से ये लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। सो ये ग्राफ लिया गया है, सो इट्स अ फुल्ली ऑथेंटिकेट, यू कैन यूज दिस डेटा इन योर मेंस पेपर while writing your answer, okay? So second point देखा जाए vegetables point of view से, so in terms of vegetables, so more important, what are the very important part? So potato and onion means आलू और प्याज की खेती अराउंड, दोनों को मिला के अराउंड 50% का प्रोडक्शन टोटल है बिहार में। आउट ऑफ दिस टोटल वेजिटेबल्स ग्रुप, जो भी जितने भी ये वेजिटेबल्स ग्रुप जो जितने भी हैं उनमें से टोटल आउट ऑफ दिस 50% are cultivated on potato and onion means 50% जो है उनका प्रोडक्शन ये होता है। एंड ऑल दीज वेजिटेबल्स आर आल्सो बीइंग कल्टीवेटेड, सो नो डाउट इन इट। सो बट द मेजर परसेंटेज of the cultivation in vegetable is that is potato and onion means that is the आलू और प्याज का, ठीक है, वो ज्यादा है। So also the government is taking part the focus, the important point है कि focus on organic cultivation, promotion of cultivation of रूफटॉप्स, ठीक है, कल्टीवेशन ऑन रूफटॉप मतलब छत के ऊपर खेती, ठीक है, उसका प्रमोशन बाय द गवर्नमेंट। दीज थिंग्स आर आल्सो इंक्रीजिंग, दिस गवर्नमेंट आर टेकिंग द स्टेप्स फॉर द इनिशिएटिव्स लाइक लो कॉस्ट कोल्ड स्टोरेज यूनिट, ओके। सो इसमें गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दिया जाना, ओके, मिनिमाइजिंग द वेस्टेज, सो ये सबसे वेस्टेज कम हो रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर acting a very important active role for the improve productivity, improve production of the vegetables in field of agriculture under the horticulture sector, right? So these things are very actively taken by the government of Bihar। गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है इसमें बहुत अच्छे से ये रोल योगदान दे रही है, तो ये सब प्रोडक्शन, दैट्स व्हाई द प्रोडक्शन हैज बीन रीच्ड from the last 2 to 3 years comparison। so this is the 16 and 19, 2016 and 2019 तक का ये डेटा है जो ये भी है। so this data has been taken from the directorate of horticulture, government of Bihar से ये लिया गया है data। so it's a fully authentic data, you can believe and you can use this data in your examinations, so mains paper examinations also, no doubt in it, right? So related questions can also be asked in the examination, okay। now let's move on, moving on। so the most important part is यहाँ पे देखिए different schemes। so let's discuss about the some of the important schemes which are covered under the Department of Agriculture in government of Bihar, and also will take the some government of India schemes। so government of India means central scheme, right? so the first important scheme is the Chief Minister Horticulture Mission। so एक ये पहला स्कीम जो है ये फर्स्ट स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर mission, right? so the main provision of this scheme is to grant for promoting rooftop horticulture means अभी देखिए जो बोला ना कि गवर्नमेंट स्टेप ले रही है रूफटॉप हॉर्टिकल्चर्स के लिए, राइट? वेजिटेशन ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन प्रोडक्टिविटी ऑन तो छत के ऊपर मतलब रूफटॉप, तो उसके लिए ये एक स्कीम चालू किया गया है जो गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर मिशन है, तो इसके तहत उस चीज को प्रमोट किया जा रहा है रूफटॉप हॉर्टिकल्चर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू मस्ट रिमेंबर रूफटॉप एग्रीकल्चर। तो ये जो मिशन है ये डायरेक्टली किस चीज को प्रमोट कर रहा है, ये प्रमोट कर रहा है रूफटॉप हॉर्टिकल्चर के लिए, राइट? सो अगेन अब देखते हैं सेकंड
सेकंड स्कीम क्या है? नाउ द सेकंड स्कीम इज बिहार स्टेट ऑर्गेनिक मिशन। अब ये ऑर्गेनिक मिशन है, ठीक है, बिहार स्टेट का ऑर्गेनिक मिशन। सो नाउ द मेन इम्प्लीमेंट इनटू, अभी तक ये 12 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो वो कहाँ? पटना, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर एंड मुंगेर, ये 12 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रमोट। तो व्हाट द मेन पर्पस ऑफ दिस स्कीम? द मेन पर्पस ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्लियर, इसका नेम से ऑर्गेनिक फार्मिंग इज टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, मेक फार्मिंग सस्टेनेबल फॉर द फ्यूचर, राइट। तो इसको फार्मिंग को ऐसा बनाया जाए कि वो फ्यूचर तक सस्टेनेट करे, फ्यूचर जनरेशंस को भी सस्टेनेबल फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लाइक दिस। सो दैट इज द व्हाई, द मेन मोटिव बिहाइंड दिस स्कीम। सो प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्टली इट विल protect the environment. Organic farming use करेंगे, making the farming sustainable, that is why it means it directly impacting the environment, protect करने के लिए environment को, स्टेप में मूवमेंट है ये, ठीक है। सॉइल का, वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम द पॉल्यूशन, उससे वाटर रिसोर्सेज का एबिलिटी इंक्रीज होगा, पॉल्यूशन फ्री होगा, ये सब जितने भी यूज करेंगे। इसका मेन मकसद इस मिशन का ये इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस। अब इस प्रोड्यूस का जो भी इससे उत्पाद होगी उसका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, टू इंश्योर बेटर इनकम फॉर द फार्मर्स। अब ये एक फार्मर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, ठीक है। फार्मर सिक्योरिटी के लिए क्या है, इसका वैल्यू, प्रोड्यूस की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली द बेटर इनकम फॉर द फार्मर, इट वुड गोइंग टू बी a गुड प्रॉफिट फॉर द फार्मर्स, राइट। नाउ थर्ड मिशन देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना। Okay, so this is scheme by the central government, GOI. This is a scheme by government of India, right? So इस scheme, the main aim of this scheme is to increase the income of the farmers by providing income support. Okay, तो ये जो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना के तहत में ये डायरेक्ट फार्मर्स लोगों को इनकम सपोर्ट दिया जाता है इस स्कीम के तहत। ओके, और वो क्या है, वो है 6,000 पर ईयर। ओके, एंड दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। एक बार में ना, ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। Okay, so the main purpose is to financially support the farmers. So it's obviously it's not a much amount given to the farmers, but it's a better step, so better for their betterment. Okay, at the ना कुछ करने से अच्छा तो है कुछ करना, तो वही चीजें यहाँ पे इस इसमें टोटल फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये इंक्लूड किया गया है, इस स्कीम को इनॉग्रेट किया गया, स्टार्ट किया गया। नाउ नेक्स्ट एक स्कीम है फोर्थ, जल जीवन हरियाली कैंपेन। सो दिस इज ऑल्सो ए गुड स्कीम, वेरी गुड स्कीम। सो ये न्यू स्कीम है जलवायु के अनुकूल कृषि। तो इसका जो इस ये स्कीम के अंडर में इंक्लूड किया गया है, तो ये देखिए जलवायु के अनुकूल कृषि, इसका मतलब क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर। तो इसका मतलब है जलवायु, मतलब जो भी इन्वायरमेंट है हमारा, जिस तरह का जो एरिया, जिस तरह का इन्वायरमेंट है, और उस इन्वायरमेंट में किस तरह के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस सपोर्ट कर सकते हैं ग्रोथ के लिए, किसमें किस तरह की प्रोडक्टिविटी, किस तरह को प्रोडक्शन इनहेंस किया जाता है, किस तरह के क्रॉप्स, किस तरह के फ्रूट्स, किस तरह के वेजिटेशन उस रीजन में हो गए, उसके अनुकूल वहां पे उस चीज की उपजाऊ, उस चीज की खेती की जाए। इस मिशन का वो ये टू एनालाइज द एरिया जन जल जन जलवायु के अनुकूल कृषि का, ठीक है। तो उसकी तरह से तो फर्स्ट फेज अभी इसका चल रहा है, फर्स्ट फेज हैज बीन इनिशिएटेड, द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन 8 डिस्ट्रिक्ट। अभी 8 डिस्ट्रिक्ट में और 40 विलेज में, 40 गांव में ये अभी चल रहा है। ओके, ये स्कीम अभी इन प्रोग्रेस है, और इस स्कीम को दिस स्कीम्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बिहार, ठीक है, एग्रीकल्चर ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स, दैट इज द ईस्टर्न रीजन। वहां पे इसके तहत, इसके साथ इसके स्कॉलर्स और रिसर्च स्कॉलर्स मिलके ये फेज को इनिशिएट कर रहे हैं, और ये चल रहा है अभी तक। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, सो दिस इज वेरी important one। तो these are the main schemes that can be asked in the examination। so आपको ये सब स्कीम, ये मेजर स्कीम्स हैं जो कि आपको होना चाहिए at least in the mind। okay, so these questions from these schemes can be asked in the examination। so चलिए मूव करते हैं। अब now the next topic for us is animal husbandry, fisheries and dairy sector से related है। तो इससे ज्यादा कुछ अभी important नहीं, इसके पे और एक डिफरेंट हमने लेक्चर ये करेंगे।
तो इस डिटेल में तो अभी डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूरे तरीके से समझ लेते हैं क्या क्या है, कैसे है, क्या नहीं है. ओके, now the first point comes over here is what is animal husbandry. So animal rearing of animals for their products is called animal husbandry, means पशु पालन को ही एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है. डिफरेंट पशुपालन, सो वो सब किसके अंडर में आता है? सो वो सब आ जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंडर. सो द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ एलाइड सेक्टर्स सच एज फिशरीज, लाइव स्टॉक एंड डेयरी फार्मिंग इन बिहार इज लार्जली ड्यू टू इट्स रोल इन सपोर्टिंग लाइव स्टॉक. ये बिहार में बहुत ज्यादा ये एलाइड सेक्टर्स कम्स अंडर द एलाइड सेक्टर, एंड दीज थिंग्स, दीज एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और लाइव स्टॉक्स और डेयरी फार्मिंग, ये सब एक इम्पोर्टेंट है large scale पे. ये बिहार में these are very dominating because these are directly supporting the लाइवलीहुड ऑफ द पीपुल. ओके, लाइवलीहुड मतलब उनके रोजगार, डेली रोजगार के बेसिस पे, दिनचर्या के बेसिस पे ये उनका सपोर्ट करता है. ठीक है, तो दिस इज लेबर इंटेंसिव सेक्टर. ओके, लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स आर इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर. ठीक है, इसमें सेक्टर में बहुत ज्यादा जो लेबर है ना, लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स इन्वॉल्व होते हैं. राइट, एक दो पर्सन से ये नहीं चलने वाला है. तो दैट इज द व्हाई इट इज वेरी लेबर इंटेंसिव. इट इज नोन एज द एम्प्लॉय लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े सेगमेंट पॉपुलेशन को ये रोजगार देता है सेक्टर एम्प्लॉयमेंट. ओके, पुअर रूरल हाउसहोल्ड. सो दिस सेक्टर हेल्प्स द पुअर रूरल हाउसहोल्ड्स. ओके, जो गरीब लोग हैं उनको ये सेक्टर बहुत ज्यादा लाइवलीहुड के लिए है. सो अर्निंग सप्लीमेंट ऑफ इनकम. ठीक है, ये अर्निंग सप्लीमेंट भी है for the peoples. Okay, so livestock and aquaculture together contribute about. अब देखिए, livestock जो है और aquaculture है, ये जो दो सेक्टर मिलके around 7.10% of gross value added in the agriculture sector of the Bihar. Okay, so that is very important data actually. So लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर जो एक्वाकल्चर है, ये जो कंट्रीब्यूट करते हैं कितना, 7.1% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन बिहार ड्यूरिंग 2018 टू 2019 तक में ये था. तो ये एक इम्पोर्टेंट डेटा हो सकता है. ओके, सो नाउ सम facts about livestock. It is an important component of agricultural economy in Bihar for it assist in supply of, because this sector provides direct supply of food and nutritional enhancement of the income and livelihood of the people, and diversifications of agricultural activities are also involved related to this livestock. Okay, so livestock population increased in Bihar from 32.9 millions to 36.5 millions. अब ये it is an important factor. So this livestock जो अभी इनका जो population है, livestock, total livestock, so in few years it has been increased from 32.9 to 36.5 millions. Okay, तो अराउंड 4 मिलियंस के आसपास अभी तक ये 2-3 वर्षों में ये इंक्रीज हुआ है. सो लाइव स्टॉक्स इंक्लूड्स कैटल, बफेलो, शीप, गोट्स, पिग्स, horse and peons, others and other livestocks. Okay, so now state what main focus. So if coming to the sea livestock services point of view से देखा जाए तो state government स्पेशल फोकस है. what are the main focus, what the things the state governments is acting on it. So first point, it's acting on delivery of veterinary and प्रिवेंटिव केयर्स. उसके बारे में प्रिवेंटिव केयर्स क्या हो सकते हैं? ठीक है, डिलीवरी ऑफ वेटनरीज एंड प्रिवेंटिव केयर्स, दीज आर द फर्स्ट स्टेप. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव्स, सो प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड टाइमली वैक्सीनेशन, दैट्स हेल्प्स द लाइव स्टॉक्स. ओके, सो increase the production of livestock. The works for the scheme जिसमें कि production of livestock have been increased, so वो step has already been taken. Okay, so improving the health of milk animals, उनके health पे जो है कि हेल्थ प्रॉपर रहे, उनके टेक केयर, ऑल दिस थिंग्स आर टेकन केयर, मींस दीज आर फोकस पॉइंट. दीज सो ऑल दिस 5 पॉइंट्स आर बीइंग अंडरटेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द स्पेशल फोकस. So that's why the livestock as of now from the 2 to 3 years it has been increased from 32.9 million से लेके 36.9 million तक increase हुआ है. around 4 million increase हुआ है in 2 to 3 years. So main reason is all these are the steps taken by the government to a special focus on these 3-4 points. So that is the important point to be noted over here. Okay,
So now, so some important fact and data that can be included in the answer: the production of livestock, fishery and dairy products. अभी इन सब का जो प्रोडक्शन है ना, कितने कितने इंक्रीज हुआ है. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की जो लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन कितना हो चुका है, मतलब इंक्रीज कितना हो, 32.9 मिलियन से लेकर 36.5 मिलियन तक इंक्रीज हुआ है. अब फिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, फिशरी इन बिहार इज इंक्रीज 4.79 लाख टन्स इन 2014-15 में था, और 2018-19 में कितना हो गया है, 6.02 लाख टन का प्रोडक्शन हो रहा है in the field of fisheries. So this has also been increased. This is also livestock, fisheries also increased. अब मिल्क प्रोडक्शन में पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टेज है स्टेडली इंक्रीज फ्रॉम द 77.7 लाख टन्स इन 2014-15 में था. ठीक है, देखिए 2014-15 में कितना था, 77.75 लाख टन का प्रोडक्शन था मिल्क का. अब हो गया है 98.1 लाख टन ऑफ मिल्क इन 2018-19 में. So all these things, this also increase. All these are the authenticate data, right? And meat production, this is also very important. That's why animal husbandry are being reared. So this has also been increased. So 2.94 lakh tons in 2014-15 में था प्रोडक्शन. देखिए मीट का अब हो गया है कितना, इन 2018-19 में इट हैज बीन 3.64 लाख ऑफ टन्स प्रोडक्शन हो रहा है. एक प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सो इट इज आल्सो इंक्रीज अराउंड कितना 58.63% से ये इंक्रीज हुआ है. सो बिकॉज these things, because we can say directly says that it's a government, there is schemes, there are proper uh, scrutiny in these things and proper allocation, fund allocation scheme. So all these things are taken. So there are also many things. What are the drawbacks on these things? What are the main focus area? So we will discuss all this in the next lecture. Okay, so इतना देखने के लिए धन्यवाद. थैंक्स. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए. वी आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंट पीपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें. as this was a lecture series, so stay tuned, we'll recently upload the new series also. So बेल आइकन जरूर कर लीजिएगा ऑन, ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करके रखिएगा. ठीक है, सो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए. सो हिस्ट्री, पॉलिटी, जीएस, ये सब के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, thousands of multiple choice questions already published on this playlist, and the playlist have been selectively intensified, so it will surely help you. Okay, thanks a lot. Have a wonderful day ahead. Thanks.